गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ये डुपॉन्ट का एक सेफ्टी मैनेजमेंट असेसमेंट था 2009 में ये किया गया था। उसका जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उस पे ये प्रेजेंटेशन है। तो आई एम धर्मपाल यादव, वेल सर्विसेज में। सर ये असेसमेंट का जरूरत इसलिए है कि वी हैव ए विजन टू बी ए ग्लोबल लीडर इन इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस। तो ग्लोबल लीडर होने के नाते हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं और हमारा मैन पावर है दैट शुड बी सेफ एंड इन वर्किंग कंडीशन। तो यदि हम कुछ कि 2001 में हमारा इंश्योरेंस कवरेज का एक सस्पेंड हुआ था, ये डुपॉन्ट ने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। एंड सेकंड वन वाज व्हिच वी आर सीइंग इज BHN 2005 जो एक्सीडेंट हुआ था। तो सर ये सब अभी भी कंटिन्यूड है। तो हम ऐसे केस में हमें सेफ्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ONGC हायर डुपॉन्ट for twin reasons. First one was to carry out a safety perception, what people in the field and people in office our management thinks of safety. Second one was to develop a benchmark assessment of our management system, how our safety culture is and what are our management practices. For this purpose, DuPont team carried out field visits at BPA process complex and Nava supply base. And they also carried out leadership interactions. So they pointed out some good things about ONGC. First one was our educated and experienced personnel. Second one is there are corporate guidelines on paper for hazard identification and very many guidelines for preparation for SOBs, management of change in case of facilities and technologies. Our facilities in offshore are good. We have OEM tag packages. Our protection of assets in our organization is valued, and we have good integrity of our facilities. For that we have SAP maintenance management system. तो सर थोड़ा इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारी जो लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे 2007-8 में पर मिलियन आवर 3.5 थी, और हमारी जो फैटल एक्सीडेंट रेट थी वो थी कि 23 पर 100 मिलियन आवर्स। यदि हम इनको अदर जो ऑयल गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनसे हम यदि कंपेयर करें तो दे हैव वेरी लेस LTIF, that is of value 0.55, and this has dropped, but in ONGC it is increasing. So this is a very serious, this was a serious situation. Sorry for interruption. This graph shows these things, sir. Yes, we have a increasing trend of between 2001 and 2008. So priority recommendation were that leadership should be committed. For this, the report mentioned that safety should not only be priority but be cultured as a value in all people working in the field. Leadership should be visible in the field in terms of setting goals, in setting trends about safety, and they should be coached like this. Second one was to establish safety goals. For that, line management, everybody from top to bottom should have their specified safety goals. This should reflect in their KPIs and their, in case of contractor, this should be a term of their employment. And third one is performance. Performance should be of high standards. For this, rules and procedures should be reviewed. I think the SOP of onshore workover was introduced after this report only. Fourth one is to carry out safety observation based on behavior of the people. We should note down what they are doing and they are escaping, and on basis of that we should inculcate value for the safety. Fifth priority recommendation is all accident should be focused. Accident investigation should be focused on prevention. Previously, all the accident investigation did not have mitigation measures, like what accidents, what measures we can take to prevent further accidents. Sixth one was to have a integrated HSE management. Like
at corporate level we should have CHSE, and asset level we should have asset HSE. This was the recommendation of DuPont safety assessment report. Seventh one was to whatever processes we are having, we should do complete safety assessment and risk management. For that, we should know everything about our process. SOP should be there for each and every process. Our quality analysis and mechanical integrity and audit should be done frequently. So this 8-point ONGC was lagging too much safety in contract management. For this, DuPont said that in pre-bid situation, in pre-bid level, we should have safety committee meetings, and the user department should give their inputs before placing a contract. And after contracting, we should have performance index for that. Ninth one was there should be a rigorous mechanical integrity. For that, we should have periodical maintenance schedule, various type of calibration and tests. I think we are doing that. And last recommendation was that to carry out this perception biannually. So this is the spider chart, sir. I think we should take some time over here, that where we are, this yellow line is showing benchmark best and blue line is showing benchmark worst, and ONGC is in between them. So the majority question number 14 was that is red in color. ONGC is showing this red in color, right? Yes, sir. Okay. If we see question number 14, that extent that safety rules are being enforced, only 16% of the person are of this belief. Whereas in benchmark best, it is of 90% of the people. And other question number 19, that recognition for safety achievements, it is between 20 and 30. Can I proceed, sir? We are doing worse in which case? This question number 14. Extent that safety rules are enforced. Yes. 14. Okay. Yes, 14, and then believe that injuries can be prevented. Yes, sir. So Q3. Number 19 also. Q14 and Q3. Yes, Q3 bhi hai, sir. Right. And 19 are recognition for safety achievements. Recognition for safety, definitely these three we are lacking. Okay, good. And priority orders, priority others give to safety as number one. That Q2 also is less. Okay. ठीक है धर्मपाल. These are based on leadership survey, sir. Next one is our safety structure. हम यदि अपने सेफ्टी स्ट्रक्चर की बात करें तो सर इसमें क्वेश्चन नंबर जो 24th है, सेटिस्फैक्शन विद सेफ्टी परफॉर्मेंस. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी परफॉर्मेंस के साथ सर हम बहुत अनसेटिस्फाइड हैं. दैट इज लेस देन 20%. नहीं, कुछ चीज में अच्छा भी है ना, इंडिविजुअल नॉलेज ऑफ सेफ्टी गोल्स एंड परफॉर्मेंस, वो तो अच्छा है. और बेंचमार्क से नीचे नो डाउट, लेकिन बेटर है. यस सर. क्वेश्चन नंबर 13 है क्वालिटी ऑफ सेफ्टी रूल्स इज आल्सो गुड. बोले 20% जो है 24 के अगेंस्ट में, उसका कुछ कारण बताया इन लोगों ने, मतलब व्हाई इट इज सो. सर उस टाइम पे सर ये BHN का एक्सीडेंट जो हुआ था उसको लेके आई थिंक दे आर concerned, people are concerned at BPA process complex. Okay, ठीक. Third one is our processes and actions versus the benchmark worst, and इसमें सर हम काफी जगह लैग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमारा ऑफ द जॉब सेफ्टी प्रोग्राम वो बहुत कम हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. आई थिंक अभी तो सर ये होने लगा है. ये 2009 का है ना, ये 2009 का डेटा है ना. 2009 का डेटा है सर ये.
हाँ तो अभी धर्मपाल, भी नंबर 18 में क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑफसाइट जॉब सेफ्टी प्रोग्राम्स? ऑफ मतलब द जो जॉब आज हम लोग सेफ्टी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स इज इट दैट? सर ये है कि जैसे हम फील्ड में होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पे जब हम किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं तो सेफ्टी पे कंप्लीट ध्यान नहीं जाता है, तो हमें ऑफ द जॉब टाइम लेके जैसे फायर का FFT है, फर्स्ट एड है, वो ऑफ द जॉब सेफ्टी प्रोग्राम्स है सर। सो टुडेस प्रोग्राम इज आल्सो ऑफ द जॉब? यस, इसी में आएगा सर। यस सर। नहीं, धर्मपाल बोलो। हाँ सर। ओके, ठीक ठीक। अरे just a minute, what I feel, Dharampal, एक minute. Yes sir. What I perceive is I could not go through the entire report, Yes sir. but of the job safety का जो मैं मतलब निकाल रहा हूँ, that is safety beyond the job, means individual is a very important asset for the company, and not only safety during the job is important, but बियॉन्ड द जॉब मीन्स जैसे कि कोई आदमी घर से निकल रहा है एम्प्लॉई, और उसका जो ट्रैवलिंग के टाइम सेफ्टी या जॉब के अलावा भी जो सेफ्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड जो रेप्यूटेड कंपनीज है दे आल्सो हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट, फॉर द ऑफ द जॉब सेफ्टी, एंड माय थिंकिंग इज कि दे वांट टू कन्वे रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट, जैसे कि आपका कैन है या हेलीबटन वगैरह में आप घर से जो ट्रैवलिंग करते हो कंपनी तक, आई मीन जैसे ऑन ऑफ है, या जो अहमदाबाद से बाड़मेर तक ट्रैवलिंग करेंगे, तो दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म द जर्नी थ्रू रोड. सो देयर आर सो मेनी मीन्स ड्यूरिंग द ट्रैवल, रोड ट्रैवल ऑल्सो द स्पीड इज लिमिटेड. सो देयर आर number of factors they have designated for the beyond the job safety, means they considered the individual as an asset. So just confirm me ki maybe they have highlighted this aspect. Okay. Sir, in the whole report they have not defined what is off the job safety programs. I have read that full report. मेरे को लग रहा है मंडावाला जी सही है, क्योंकि मैंने देखा कि व्हेन शेल का ऑफिस में जाने के टाइम इफ यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल एंड विदाउट सीट बेल्ट दे डोंट अलाउ, तो मे बी धर्मपाल मे बी दैट इज आल्सो सर वही है इनका कहने का भी पर्पस है। मंडावाला साहब ने वही बोला है जो धर्मपाल भी वही चीज बोल रहा है सर, ऑफ प्रेजेंस ऑफ द जॉब सेफ्टी। ऐसा नहीं खाली हम काम के समय सेफ्टी ले, हम जॉब से बाहर भी सेफ्टी को ध्यान रखें। हम उसके बाद जैसे अभी से डिलीबरेशन कर रहे हैं, हम ऑफ द जॉब डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज अगर हमारे कल्चर में आएगा, जैसे घर से निकल रहा आदमी, हमारा आदमी ऑफिस ड्यूटी करने जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर आने बहुत टाइम लग रहा है। अभी फाइनेंस के दिमाग में बैठा है शॉर्टेस्ट रूट में जाना है, चाहे तुम गिर के जाओ मर के जाओ, शॉर्टेस्ट रूट का ही पैसा मिलेगा, वो शॉर्टेस्ट ही जाना है। ये सब कल्चर चेंज करना जरूरी है। राइट, एंड वन मोर जस्ट एड दैट, जैसे शेल में एक रूल है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग ओवरनाइट जर्नी है तो यू विल बी ट्रैवलिंग ओनली बाय एग्जीक्यूटिव क्लास फॉर इज देयर दिस थिंग, कि उनका पता नहीं फॉर सम रीजन। जैसे वंस आई ट्रैवल टू सूडान थ्रू ओवीएल का रूल है कि इफ यू आर गोइंग टू कंट्रीज लाइक सूडान एंड ऑल, फॉर सम रीजन येलो फीवर एंड व्हाटएवर इट इज, आई ट्रैवल थ्रू बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। वो कुछ है इस तरह का मंडाला सब शायद सही है कि ऑफ द जॉब सेफ्टी जो है वही सब चीज है। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके गुड पॉइंट मंडाला जी। चलो आगे बढ़ो। ये सर बेंचमार्क सेफ्टी असेसमेंट कंटिन्यूड है सर। इसमें टोटल 22 एलिमेंट्स रहेंगे। 12 एलिमेंट्स ये हैं सर। इसमें ये लेजेंड्स हैं कि कौन सा सेफ्टी पॉइंट हमारा इन प्लेस है, कौन सा पार्शली इन प्लेस है, और येलो वन इज फॉर प्रायोरिटी इम्प्रूवमेंट। सो सर उन्होंने 5 लेवल्स किए हैं। L1 इज फॉर फंडामेंटल लेवल, L2, L3, L4 and 5. L5 is वर्ल्ड क्लास। तो सर मैनेजमेंट कमिटमेंट में उन्होंने हमें L1 दिया है एंड दैट इज इन प्लेस। वी हैव ए लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव। आवर पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स आर ऑफ अवेयरनेस लेवल, बट वी हैव ए लॉट टू गो येट। आवर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइक CHSE एंड एसेट HSE, ये भी पार्शली इन प्लेस है। इसमें सर आई थिंक अभी तक काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है।
जो लाइन मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सर इम्प्रूवमेंट का काफ़ी ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स ये इसमें सर आई थिंक केपीआईज जो हैं उसमें ये पर्सनल जो एक्शन प्लान है व्यक्ति का उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए वो काफ़ी अभी इन प्लेस भी नहीं था 2009 में पर्सनल सेफ्टी गोल्स और सेफ्टी पर्सनल की अवेलेबिलिटी और उनकी ट्रेनिंग उसमें L2 लेवल पे हमारा इन प्लेस है प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इसमें सर उन्होंने क्या किया बीपीए प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 सेफ्टी वाल्स जो थे उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में उन्होंने वाल्स पाए गए और उनका लॉकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं था तो वो एक वॉयलेशन था तो उसको देखते हुए उन्होंने इसको पार्शियली इन प्लेस बताया एलिमेंट 7 हम लोग ज्यादातर अभी L1 L2 लेवल में ही हैं। यस सर बैक इन 2009 कंटिन्यूइंग फर्दर सर हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसको भी अभी इम्प्रूवमेंट जैसे कि जो भी नए कुछ भी चेंज होता है जैसे हमारा या तो इक्विपमेंट मेजर और हॉलिंग से आता है या कोई पर्सन ट्रांसफर होके आता है या काफ़ी ऑफ द जॉब काफ़ी टाइम तक रहा है तो उसको उसका दोबारा से ट्रेनिंग होना चाहिए ये इसमें भी इम्प्रूवमेंट का है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेके सर उन्होंने ये बताया था कि एक रेडियो कम्युनिकेटर रेडियो पर्सन था उसको उससे वो लोग काफ़ी खुश हुए थे लेकिन जो उनका हेल्थ का सिस्टम था कि डेली जो डीपीआर में जा रहा था कि नो एक्सीडेंट नील रिपोर्ट जा रही थी लेकिन 3 लोग वहाँ पे अपना उंगली किसी का हाथ छोटा मोटा चोट उनको आया था तो वो रिपोर्ट को लेके उन्होंने पार्शियली इन प्लेस बताया फंडामेंटल लेवल पे कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस जो है वो भी सर कम पाया गया ऑडिट्स एंड ऑब्जर्वेशंस को प्रिवेंशन बेसिस पे करना था इसको लेके उन्होंने एलडी दिया फर्दर ये सर एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे सर इसमें रिपोर्ट में काफी एक्सटेंसिव लेवल पे इस पे दिया हुआ है प्री जैसे एलिमेंट 16 है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू जो भी हम जैसे भी हमारा पीडब्ल्यूसी होता है उसी तरीके का सर उन्होंने ये चीज उसमें बताई हुई है मैकेनिकल इंटीग्रिटी है उसके लिए सारे टेस्ट कैलिब्रेशंस ये सब टाइम टू टाइम होना चाहिए प्रोसेस टेक्नोलॉजी में सर हमको L3 मिला है धर्मपाल एक मिनट धर्मपाल 1 मिनट ये जैसे आपने बोला प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू इसमें हमारा दो L1 भी रेड है L2 भी दिखाया है तो हमको तो दोनों एक ही हो गया ना फिर अवेयरनेस लेवल भी तो हमारा इन प्लेस है तो दोनों सेम कैसे हो सकता है L1 L2 तो दोनों को एक ही होगा ना नहीं सर अवेयरनेस लेवल पे इन प्लेस है और L2 लेवल पे भी इन प्लेस है अच्छा पार्शियली इन प्लेस नहीं है सर ठीक ठीक ये सर उन्होंने वहां पे डिस्कस किया था कि यदि आपका इक्विपमेंट यदि मेजर ओवरहॉलिंग के बाद में आता है तो आपका उसमें प्रोसीजर क्या है जैसे हमारी कोई भी रिग आती है तो हमारा कोई रिटर्न प्रोसीजर है कि हम सारे इक्विपमेंट को पीडब्ल्यूसी से अलग लेवल पे भी उसको टेस्ट करते हैं रेदर देन रूटीन कंटिन्यूइंग फर्दर सर एलिमेंट जो रिस्क असेसमेंट और हजार्ड एनालिसिस है उसको भी बहुत इम्प्रूव करने का उसमें स्कोप है और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए वो लोग काफ़ी पॉजिटिव थे सर तो सर सेफ्टी कल्चर का जो इवोल्यूशन की हम बात करें तो उन्होंने डुपॉन्ट के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस में सेफ्टी इवॉल्व होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट वन इज रिएक्टिव जिसमें ये होता है कि आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से या फिर नेचुरल इंस्टिंक्ट से जो सेफ्टी आती है जहाँ पे हम सिर्फ किसी ने बता दिया वही कर दिया तो उस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट और इंजरी होने के चांसेस हैं इसमें हर एक चीज़ सेफ्टी मैनेजर पे डेलीगेटेड होती है और मैनेजमेंट का जो सेफ्टी में इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम पाया जाता है तो सेकेंड वन इज डिपेंडेंट स्टेज वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर मैनेजमेंट और आवर कंट्रोलिंग ऑफिसर और सुपरवाइजरी पीपल तो इसमें जो इन्होंने बताया है कि वी आर रीचिंग इनटू डिपेंडेंट स्टेज our further goal should be for independent and interdependent where each and everyone
is committed in independent stage, they are helping each other in interdependent stage. In that stage, injuries should be and accidents should be minimum. We are at reactive stage. नहीं, डिपेंडेंट में है सर, टच करके डिपेंडेंट स्टार्ट हुआ है सर, Okay. रिएक्टिव पार्क की है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ये 2009 का स्टेटस है बेसिकली। Yes, sir. So we should be at just बैक जाओ सर, इंटरडिपेंडेंट तो सबसे बेस्ट है। okay. Team building, team commitment, development. तो ग्राफ जो टच करेंगे तो मतलब वी आर इन दैट स्टेज, है ना? यही तो बोल रहे हैं ना? नहीं सर, ये वी आर इन, वी बिलीव यू आर हियर जो लिखा है सर, हम लोग डिपेंडेंट के इसमें स्टार्ट में है। We have crossed reactive stage, sir, and we are entering into dependent stage. Okay. इंटरडिपेंडेंट में पहुंचना है सर। Yes, sir. Okay. हमारा पूरा जो सब डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको सबको एज ए टीम सेफ्टी के लिए काम करना पड़ेगा। तो रेड कलर का जो ग्राफ है वो और थोड़ा ऊपर उठ के आना पड़ेगा, नीचे जो है ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक, ओके। थैंक यू सर। चलो, गुड प्रेजेंटेशन भाई। सभी रीक का आदमी लोग आज अटेंडेंस है सबका? हाँ सर, 26 का तो 26 तो दिखा रहे थे इसमें। चलो, गुड भाई। प्रेजेंटेशन बहुत ही क्रिस्प था एंड ऑन टाइम फिनिश, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत लंबा होने से